टेंस पढ़ा थे। वाइट बेटा Okay, students, we will start now. तो फिर सबसे पहले we will discuss about tenses. Tenses. What do you mean by tense? Tense is a form of verb which tells us about time, period, and action. Okay, and how many types of tense? Kinds of tense are 3: present, past, and future. Okay, and present indefinite. We have discussed about present indefinite, so we will revise it again. First of all, you will tell me about uses of tense. Okay, then uses. First of all, you will tell me about uses. Uses के बारे में बताइए. First uses में क्या चीज थी? Ma'am, universal truth. Yes, universal truth. Can you give any example of universal truth? The sun rises in the east. It has been already given to you. Any Yes, ma'am. universal truth? The earth revolves around the sun. Okay. Okay. We remind it again. That is why I want to tell you again. Okay. Next, what is? After it, what is? Habitual activities. Habitual activities. And it may be habitual activities. It may be repetitive actions. Okay, repetitive actions can be say. So can you give any example? Hello students, can you give any example of repetitive activities or habitual fact? Yes students, give me answer. जल्दी करिए. देखिए फिर इसके बाद में next पढ़ेंगे हम. Yes, tell me. I up early in the morning. This has been already told. Okay, any other example you will give now? Yes. She go to tuition at 4 p.m. There is no habit of it. Okay, this is repetitive activity. This one is repetitive, repetitive activity. Okay, so he goes tuition at 4 o'clock or 4 p.m. ठीक है. तो आप ये जो है repetitive activities है, it's not habitual action. Can you tell me example of habitual action? He takes milk every day in the morning. Yes, he takes milk every day. Ma'am, हाँ, in the he goes morning. temple daily हो सकता है habitual. Yes, Action. daily is also habitual. Daily. He takes tea daily. Okay. This one is the example of habitual action. In the same manner, repetitive activities. He goes to school daily. Tuition का बताया है example. तो ये रहने दीजिए. ये दोनों हो गए. उसके बाद आ जाइए आगे.
Next, what will be? General fact. Can you give any example of general fact? Can you give any example of general fact? Electronic items are run by electricity. Yes, The general earth fact. revolves around the sun. ये तो जनरल क्या? यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ है वो. इलेक्ट्रॉनिक जनरल फैक्ट. यस. मैम इसमें कंफ्यूजन है. देखिए जनरल फैक्ट जो है, जैसे आई हैव गिवन एग्जांपल ऑफ जनरल फैक्ट्स, 2 and 2 make 4. This one is general fact. In the same manner, Rahul is saying that electric appliance always run by electricity. Okay, तो इलेक्ट्रिसिटी ये भी एग्जांपल करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस होंगे वो रन करेंगे. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. देन आपको अब क्लियर हो गया? हेलो, इज इट क्लियर टू यू नाउ अंकित? Yes. यस मैम. हाँ. अब नेक्स्ट जनरल फैक्ट्स के बाद में क्या है? नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको? साइंटिफिक फैक्ट्स में क्या चीज आएगा? बताइए, साइंटिफिक फैक्ट्स कौन से होते हैं? कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स? जल्दी आंसर देते चलिए, फिर अब दूसरा भी पढ़ना है. Water freezes at 0 degrees Celsius. I have already told. Acid turns litmus paper into red. क्या? फिर से बोलो बेटा. Acid changes the color of litmus paper to red. Yes, acid change the color of litmus paper into red. Red. Okay, it is fact also, scientific fact. Next, what was there? Newspaper headlines. एक तो बहुत Yes, ज्यादा याद ma'am. है इसको. Newspaper headlines and anything else? और क्या बताया था मैंने? And fixed programs. Fixed programs. Yes. Okay. Fixed programs. Can you give any example of fixed programs? जल्दी बताइए. Can you give any example? इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं. They can give example of fixed programs. Lakshmi, what will be the example of fixed programs? I go to Jaipur tomorrow. I go to Jaipur tomorrow. I will be there. How you tell me that it is a fixed program? I always go in my grandmother's house on Saturday. This one is not. जो लक्ष्मी, ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोग्राम्स ऑन सैटरडे, तो टुमारो या नेक्स्ट डे लेगा ये. देखिए, फिक्स्ड प्रोग्राम्स में आपका जो बड़े लोग होते हैं या फिर कोई ऐसी प्रोग्राम्स होते हैं जिनका कि हमारा वॉचिंग होता है, स्पेशली कोई ओकेजन होता है, उसके लिए हम फिक्स्ड प्रोग्राम्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट PM comes to our school. नेक्स्ट और टुमारो, ये दोनों जो है क्या लेंगे? ये आपका जैसे PM मोदी, आई हैव गिवन दिस एग्जांपल आल्सो. PM मोदी अराइव्स इन जयपुर टुमारो, तो इन द नेक्स्ट वीक. ठीक है. देखिए, इस तरीके के एग्जांपल्स, whatever you will decide it, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जैसे जो आप कॉमन थिंग्स बता रहे हो ना, ये कॉमन थिंग्स इसमें इंक्लूड नहीं होती. ठीक है.
आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes. Tomorrow is a holiday on the account of जन्माष्टमी, तो ये वाला tomorrow is आएगा, कंफर्म है. ओके, will be नहीं होता है. अब will be लिखते हैं, अगर tomorrow will be holiday लिखते हैं तो हम इसको पूरी तरह से इनकरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि will is also used there in future tense. बट एक चीज उनको समझानी होती है हमें कि जब कभी भी हम फिक्स्ड प्रोग्राम को बताते हैं देन हमें इज का यूज करना चाहिए, will का यूज नहीं करना चाहिए. क्लियर टू यू? Yes, ma'am. सो दिस वन इज रॉन्ग. एक तरीके से ये रॉन्ग है, क्योंकि ये फिक्स्ड प्रोग्राम्स है. ओके, जैसे कि जन्माष्टमी है जो एक फिक्स्ड प्रोग्राम है और इस कारण से छुट्टी है. ओके, सो दैट इज वाई विल भी नहीं होगा, वहां पर इज होगा. क्लियर? Yes, ma'am. हाँ. नेक्स्ट, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, न्यूज़पेपर हेडलाइंस तो आपको पता ही है. फिर उसके बाद कमेंट्री. कमेंट्री के लिए क्या बोलोगे आप? जैसे कि सचिन तेंदुलकर हिट्स 100 या कोहली हिट्स 100. ओके, तो दैट वन इज हिट्स. ये वर्ड यूज किया अपन ने, हिट्स 100. तो ये क्या है? उसने 100 रन बनाए एक बार में, तो फिर इसका मतलब सेंचुरी किया पूरा. तो ये क्या है? कमेंट्री है, और कमेंट्री के टाइम पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं. क्लियर? उसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी. व्हाट वाज इट? मैं वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने उसको मोरलिटी के लिए बताया था, मोरल वैल्यूज के लिए. कोटेशंस था Yes, और ma'am. मोरल Quotations. वैल्यूज थी. ठीक है, प्रोवर्ब्स, जिसको प्रोवर्ब्स भी बोलते हैं. प्रोवर्ब्स जो है, ये कोटेशंस और प्रोवर्ब्स ऑलवेज क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्लो एंड स्टीडी. मैं लिख दूंगी तो फिर क्या फायदा? द रेस. ओके, तो ये क्या है? एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है. तो इस कहावत के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? विंस. अब स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस. यहाँ पर विन क्यों नहीं लगाया हमने, जबकि हमने 2 and 2 मेक 4 यूज किया था. बताइए बच्चों, हमने यहाँ पर मेक्स क्यों यूज नहीं किया? मेक्स यूज करते ना हम, और हमने यहाँ पर विंस यूज किया है. वाई? क्या रीजन है कि हमने यहाँ पर 2 and 2 मेक यूज किया है? ये करेक्ट बताया है, प्लूरल. मैम ऊपर वाली साइड से कहावत है, आइडियम. साइज से कहावत तो है, लेकिन उसमें आइडियम है. प्लूरल भी. यस बेटा, उसमें प्लूरल भी यूज कर सकते हैं हम. तो हमने प्लूरल यूज क्यों नहीं किया? विन यूज क्यों नहीं किया? विंस को चूज क्यों किया? मैम, जो स्लो और स्पीडी वर्ड्स है वो एक ही इंसान की क्वालिटी. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. आई वांट दिस आंसर. तो ये भी आपके एग्जाम्स में आता है, आपको पता होना चाहिए. इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन नाउन्स का जो पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे, सिंगुलर प्लूरल, उसके अंदर यूज किया जाएगा. हाँ, तो वेरी गुड. यही हम सुनना चाहते थे कि एक ही पर्सन की बात हो रही है, जो कि स्लो और स्टडी मतलब लगातार जो वर्क करता रहता है, वो विंस द रेस, वही जीतता है. ठीक है, रेस को. तो इसलिए यहाँ पर एक व्यक्ति की बात होने की वजह से वहां पर सिंगुलर नंबर यूज हुआ है, प्लूरल नंबर यूज नहीं हुआ है. वेरी गुड पायल. सो नाउ 2 and 2 makes 4. Wrong. And 2 and 2 make 4, because of particular 2 is another and 2 is another. That is why plural number is used here. Okay? Okay, is it clear? Yes, ma'am. हाँ. Yes, अब ma'am. next thing we will see
क्या था उसमें बताइए, और कुछ रह गया? जो वर्ड्स है ना मैम यूज ऑफ एडवर्ब एडवर्बियल्स, ओके एडवर्ब्स तो एडवर्ब्स बहुत नेसेसरी है, उनको लर्न करना बहुत जरूरी है, ओके क्योंकि उससे काफी हमको हेल्प मिल जाता है। लेकिन अब आपका वो टाइम निकल गया है 10th वाला। 10th में आपको मिल जाता था उससे हेल्प, लेकिन जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें कोई हेल्प नहीं मिल रहा, क्योंकि अब आपको जो मिलेगा ना वो डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चंस ही मिलेंगे। 11th-12th की बात नहीं हो रही है, उसके बाद के एग्जाम्स की बात हो रही है, और 11th-12th की भी बात हो रही है, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि जो कंपटीशन में दिया करते हैं एग्जाम्स के में वो बहुत स्पेसिफिक हुआ करते हैं क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस नहीं जो 10th में दे दिया गया, वो 10th जैसा लेवल नहीं होता उनका। अच्छा, क्योंकि जो यूजेस हैं उनको पूरी तरह से माइंड में रखना होगा और यूजेस से ही आपको बेनिफिट होगा। क्लियर टू यू? समझ आ गया? यस तो मैम। अब कौन सी चीज रह गई है ये बताइए? परमानेंट कंडीशन। परमानेंट कंडीशन का क्या है? हाँ, परमानेंट कंडीशन बताओ कोई, कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ परमानेंट कंडीशन? जल्दी बोलिए पायल। मैम ये एक तरीके से रूल हो सकता है क्या? बिल्कुल, यूजेस में आएगा ये परमानेंट कंडीशन। तो परमानेंट कंडीशन के लिए क्या आएगा? कैन यू गिव एनी एग्जांपल ऑफ परमानेंट कंडीशन? कंडीशन और स्टेट डोंट यूज योर मोबाइल फोन इन द कॉलेजेस। ये जो एग्जांपल देते हो ना बड़े विचित्र से होते हैं। अभी देखिए परमानेंट कंडीशन आवर हाउसेस, या फिर माय हाउस कर देती हूँ मैं, माय हाउस फेसेस टूवर्ड्स साउथ। ओके, तो ये क्या है? परमानेंट कंडीशन ऑफ हाउस। सो दैट इज वाई परमानेंट कंडीशन के लिए जिनको हम मूवमेंट नहीं दे सकते, ठीक है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। हाँ, तो आपको आई थिंक ये सारी चीजें पता चल गई। ओके, अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बाद में दूंगी, अपनी बुक से बताऊंगी, बहुत सारे लिख के, और बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पुट अप करूंगी। लेकिन पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ लिया, उसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चलेंगे। तो हमको वर्डिंग्स बता दीजिए, ठीक है? मैं लिखूंगी नहीं, वर्डिंग्स बता दीजिए कौन कौन से आपके एडवर्ब्स हैं जो आप यूज करते हैं। जल्दी बोलिए। ऑलवेज, नेवर, ऑलवेज, नेवर, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, एवर, यस, डेली भी इसमें इंक्लूड है। तो दीज आर ऑलवेज यूज, दे आर इन प्रेजेंट। हाँ बोलिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफन भी है जिसमें, इसको हम किस में यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। Have you written all of you? I have already told Yes, you. ma'am. तो these should be written in your copy and should be learned by you. कई बार सेल्डम वगैरह जो है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है, तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें छोटी छोटी सी गलतियां आप करके आ जाते हो, और उनके वजह से आपकी मार्किंग बहुत कम हो जाती है। तो नाउ सी नेक्स्ट, it has been completed. Now we will go towards present continuous tense. Okay, now write down present continuous tense. Okay बच्चों, we will start now present continuous tense or progressive tense. ठीक है? First of all we will write formulas. Positive, formula of positive tense.
Okay, positive present continuous tense. Okay, so subject plus what will be? Helping verb is वर्ब की फर्स्ट am, फॉर्म are plus verb first form Plus plus ing. ing plus object. Okay. कर रही है Okay. So now I want to ask you if there will be verb first form plus ing is used in the starting of the sentence. What is called it? बताओ, जब हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? Gerund. जेरंड. यस. स्पेलिंग बोलिए. Gerund. Yes, good. Gerund. Can you give any example of present of gerund? Can you give any example? Yes. Swimming is good for health. Yes. Or we can say walking is a good exercise. Walking is a good exercise. So here the walking word is used as a gerund, and we can say that it is working as a subject. Clear? जब वो सब्जेक्ट के रूप में वर्ब करता है तो वो gerund कहलाता है, और ये आपका सब्जेक्ट के रूप में वर्क करने की वजह से इसको क्या हम बोलते हैं? gerund. Clear to you? यस मैम Okay. चॉकलेट्स ना, चॉकलेट का बातें हो रहा है क्या? अच्छा, ओके. नेक्स्ट इसी का हम वर्ब के अंदर देखिए कौन कौन सी कैपेबिलिटी होती हैं. हमने भी वर्ब का टॉपिक नहीं पढ़ाया है, लेकिन वर्ब का टॉपिक साथ में चलता है बिकॉज ऑफ इट इज टेंस. दैट इज वाई वर्ब का टॉपिक जो है उसके साथ ही यूज होता है. जस्ट एज आई हैव रिटन हेयर सेंटेंस, मतलब इट मीन्स कम ओनली, देन व्हाट विल बी इट? टेल मी. मैम इसकी सेकंड फॉर्म बतानी है क्या? नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं बतानी है. आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज दिस? ये क्या है? वर्ब ओनली कम आई हैव रिटन हियर. वर्ब If it is, I know this is verb, but what is it? क्या है ये? Sentence. This one is the full sentence. Come, it means this one is the full sentence. How we divide it into subject and predicate? कैसे divide करेंगे इसको subject और predicate पे? Do you know? No, ma'am. पायल, हमने आपको 10th में पढ़ाया था. ये किसको याद है? किसको लर्न है ये? लक्ष्मी, if there is only one word is written, then it is a full sentence. Okay, then how we will divide it into subject and predicate? मैम इसके आगे या फिर इसके पीछे कुछ वर्ड जोड़ देंगे जिससे इसमें अच्छा, subject अब हम कुछ वर्ड जोड़ देंगे. लक्ष्मी, कितना लर्न नहीं होता तुम्हारे को? देखिए, मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, इनमें से आप चूज करके बताइए. यू एंड आई. व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर? अच्छा, अगर सब्जेक्ट हमें नीडेड है तो व्हाट विल बी यूज हियर? क्या यूज करेंगे इसमें से हम सब्जेक्ट बनाने के लिए? हाँ, You. कौन सा वाला यू? Second. सेकंड या फर्स्ट? कौन सा? Second.
Second. ओके, तो इट इज राइट आंसर। लेकिन क्या अल्टप पे ही सही चला गया आपका? कैसे जाना आपने? हम सेकंड यूज करेंगे। मैम आप एक बार बताए थे क्या बताए थे हम? कि मैम यहाँ पर इनविजिबल है सब्जेक्ट। इनविजिबल सब्जेक्ट, गुड। देखिए हमने एक बार बताया और उस बच्चे ने याद रखा, और हम आपको 10th में पढ़ा दिए। यू आर न्यू स्टूडेंट मनीष? यस मैम। मैम मैं नहीं हूँ। नहीं, कुछ कौन बता रहा है ये बात हमारे को? आयुष। किसने बताया? आयुष। ओके, आयुष इज अ गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। तो उसने इस बात को याद रखा एटलीस्ट। आई हैव टोल्ड ऑलरेडी बट यू हैवंट रिमाइंड। आपको जब याद ही नहीं रहेगा अभी से, तो आगे आप एग्जाम देने जाओगे तो क्या करोगे? So now, because of it is in bracket, that is why it is correct only, and these are wrong. और अगर ये भी ब्रैकेट में होता तो ये भी सही था, ठीक है? So we will start next. मैम ब्रैकेट में लेने से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? अरे भाई, वो इसलिए इफेक्ट पड़ा क्योंकि वो इनविजिबल हो गया बेटा। क्योंकि इनविजिबल चीजों को असाइड बोलते हैं। हम लिटरेचर पढ़ाते हैं, उसके अंदर देखना एक टॉपिक और आएगा, असाइड, ठीक है? और सॉलिलॉकी। सॉलिलॉकी क्यों भाई? अभी देखो सॉलिलॉकी क्या होता है। सॉलिटरी, अब जैसे फीलिंग्स का एक्सप्रेशन, असाइड और सॉलिलॉकी क्या होते हैं ये? आई एम टेलिंग यू। देखो बच्चों, ब्रैकेट के अंदर जो बातें कही जाती हैं वो अगर हमारे कोई, क्योंकि हमारे कोई सुनाई देती है, वो हम दूसरे, जैसे स्टेज पर विलियम शेक्सपियर, आपको मैकबेथ वगैरह पढ़ना, जूलियस सीजर में आपको पढ़ाऊंगी लिटरेचर में। जूलियस सीजर जो है उसके अंदर देखिए क्या लिखते हो, असाइड। असाइड का मतलब जब स्टेज पर कोई बंदा आता है और वह ऐसे सेंटेंस और ऐसे डायलॉग्स बोलता है जो उसे अपने पास वालों को नहीं सुनाना होता है, केवल जो दर्शक, जो ऑडियंस बैठे हैं उनको सुनाना होता है, तो दैट वन इज कॉल्ड असाइड, ठीक है? असाइड का मतलब क्या हो गया? ब्रैकेट के अंदर बंद है वो असाइड, बिकॉज ऑफ he doesn't want to tell to others. ओके, अब आगे चीज क्या है? सॉलिलॉकी, इट मींस बिल्कुल सॉलिटरी जब होता है बंदा, ठीक है? देन इट इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड? असाइड। असाइड नहीं है ये सॉलिलॉकी बिल्कुल सॉलिटरी होता है। वो अकेला स्टेज पर खड़ा है एंड सेइंग समथिंग, तो ऑन दैट टाइम सॉलिटरी, तब सॉलिलॉकी कहलाता है। ओके, ये सॉलिटरी है और ये सॉलिलॉक कहलाता है। तुमको नहीं समझ में आएगी क्योंकि ये चीज अलग। असाइड का मतलब होता है कि जो कि अब बहुत सारे लोग बैठे हैं लेकिन उनके स्टेज पर ही, लेकिन पास वाले को न सुनाई पड़े, खुद में ही बोल लिया, तो दैट इज कॉल्ड, और केवल ऑडियंस को पता चले, ये असाइड कहलाता है, ठीक है? अब हमने तुमको क्या बताया ये, क्योंकि ये जो दोनों ब्रैकेट हैं वो आपको शो कर रहे हैं, क्या चीज शो कर रहे हैं आपको? कि वो अपने मन में बोल रहे हैं। यस, तो दैट इज व्हाई वो इनविजिबल है, और इनविजिबल थिंग्स को ब्रैकेट से शो करते हैं। अब समझ में आ गया भैया? यस मैम। ओके, नहीं बोलना ज्यादा है ना, सुना। जस्ट अ मिनट। अब नेगेटिव पहले ही तो कंप्लीट। सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके? एंड आफ्टर इट interrogative is MR. Yes. After it plus subject plus verb की first form. first form. Yes. ing plus object plus question mark. Yes. And whenever interrogative negative is MR plus subject plus is MR plus
subject plus not Not. plus verb first form plus ing plus object plus object plus question mark. अब if there is need of WH word, then we can include it also. Okay? अगर WH Yes, ma'am. word use करते हैं, why are you not going there? Okay? So this one is why are you not going there? तुम वहां पर क्यों नहीं जा रहे हो? So इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हो गया और साथ में WH वर्ड का भी यूज हो गया. ओके, so this type of sentences are called interrogative negative sentences. Okay, is it clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then you have written these things, these formulas. Yes, ma'am. You should be noted. After it, I will tell you uses of present continuous tense. So, what is the time now? 250. Okay, so I want to close now, and tomorrow we Okay. will discuss uses of it. Tomorrow we will discuss uses of it. Okay? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Have a nice day, all of you. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you.